سلیم، ہمیں خوشی ہے کہ آپ اپنی جدوجہد میں دیانتدار ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ جماعت ایک ایسا مقام ہو جہاں ہر سوال کرنے کی آزادی ہو۔ ہم ہر سوال کا جواب تو نہیں دے سکتے کیونکہ ہم خود متلاشی ہیں۔ آپ کے سوال کا مختصر طور پر جواب میں یہ کہوں گا، حالانکہ میں اس قابل تو نہیں ہوں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام بے گناہ ہوتے ہوئے وہ اس قابل ہے۔ اس نے ہمارے لیے افضل قربانی دی، ہمارے لیے سیدھا راستہ بنا۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اتنے نزدیک تھے کہ انہیں دنیا اور آخرت میں ایک اعلیٰ مقام دیا گیا ہے۔ اسی سبب سے کتاب مقدس میں ان کا ذکر کئی مرتبہ آیا ہے۔ میری زندگی میں ایک وقت ایسا بھی تھا جب میں نے عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں مطالعہ کیا اور یہ جانا کہ مجھے انتخاب کی ضرورت ہے۔ جو عیسیٰ علیہ السلام کے سبق اور پیروی کرنے کے لیے ایمان کا ایک قدم ہے، اور اب مجھے یقین ہے قادر مطلق عیسیٰ علیہ السلام، جن کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مقرر کیا ہے، ان کی فرما برداری کرنے سے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ابدی زندگی گزاروں گا اور روز قیامت اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچ جاؤں گا۔ احمد، کیا میں اور جوڑ سکتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مجھے میری بیماریوں سے شفا دے سکتا ہے، میرے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، میری زندگی تبدیل کر سکتا ہے اور مجھے اپنا سکون دے سکتا ہے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام جو آسمان میں گیا اور آج بھی زندہ ہے، وہ آج بھی لوگوں کو شفا دیتا ہے، آج بھی ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، وہ آج بھی گناہ اور ابلیس سے رہائی دیتا ہے، وہ آج بھی ہمارے دل محبت اور رحم سے معمور کرتا ہے۔ بھائی سعید ایک تبدیل شدہ شخص کے طور پر گفتگو کر رہے ہیں۔ سعید، آج شام کو جماعت ختم ہونے کے بعد سلیم بھائی کے ساتھ گفتگو میں آپ شریک ہوں، اور پسند کروں گا کہ اگر آپ کلام کے مطالعہ اور دعا میں شریک ہوں تو زیادہ بہتر ہے، اچھا رہے گا۔ میں پسند کروں گا آج کلام پاک کے مطالعے اور دعا میں آپ کے ساتھ زیادہ وقت گزاریں، اور کوئی بھی ہمارے ساتھ شریک ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آج کے مطالعے پر اپنے تاثرات کا بیان جاری رکھیں۔ مجھے یاد ہے جب میں روح القدس کی گہری سمجھ کا منتظر تھا، جیسا کہ رسولوں کے اعمال میں حکم ہے کہ میں ساری دنیا میں جاؤں اور اس کی خوشخبری کی منادی کروں۔ آج کی پڑھائی میں نے دیکھا کہ پطرس و یوحنا خدا کے حکم کی اطاعت کرتے ہیں۔ پاک روح نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ کے ذریعے مجھے یہ ظاہر کیا کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ میں ڈروں، بلکہ بہادری کے ساتھ باہر جاؤں۔ حالانکہ میں سطحوں سے ڈرتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری کرنا میری اپنی پریشانیوں سے زیادہ ضروری ہے۔ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیرت انگیز قربانی اور اس کا پیار جانتا ہوں، تو ڈر اور خوف مجھے اس کی بات کہنے سے
कैसे रोक सकता है? मैं जोश में हूँ कि कैसे अल्लाह ताला मेरे लिए दरवाज़े खोलता है कि मैं उसके बारे में बता सकूँ और लोगों को अल्लाह के रहम और ईसा अल मसीह की राह हक़ के बारे में बता सकूँ। अगले हफ्ते हम पढ़ेंगे कि किस तरह मुसीबतों के दौरान में भी पहले के मानने वाले लोग आगे बढ़े, खुदावंद की उन पर बरकतें रहीं। क्या हम अपनी ज़िंदगी में रूह कुद्दूस की ज़्यादा क़ुव्वत और रहनुमाई चाहते हैं? ठीक है, आइए हम अल्लाह ताला से उसी तरह दुआ करें जिस तरह ईसा अलैहिस्सलाम ने हमें सिखाया है। भाई अब्दुल, क्या आप दुआ में हमारी रहनुमाई फरमाएंगे? ज़रूर अहमद भाई, ये मेरे लिए बड़ी इज़्ज़त अफजाई की बात है। ऐ खुदावंद करीम, हम दुआ में तेरे सामने आते हैं। हम जानते हैं कि तू हमारी दुआ सुनता है, क्योंकि हमने तेरी अफसल कुर्बानी को कबूल किया जो ईसा अलैहिस्सलाम ने हमारी खातिर दिया, वो जिसको तूने हमारी खातिर भेजा। है अल्लाह ताला, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने हम पर अपने कलाम और हमारे लिए तेरी ख्वाहिश को ज़ाहिर किया। तूने हमें अपने कलाम पाक में बताया है कि हम सिर्फ़ तेरी रूहुल कुद्दूस के लिए दुआ करें और जो कुछ हम तुझसे मांगते हैं तू हमें खुशी से देगा। ऐ अल्लाह ताला, हमें अपना रूह अता फरमा जो हम तेरे अहकाम की फरमा बदारी में मांगते हैं, तेरे रहमत और ईसा अल मसीह के वसीले से मांगते हैं। आमीन। तो भाइयों, ये बातें अपने ख़ानदान वालों को सिखाना, बुराई से अपने आप को दूर रखना और अल्लाह ताला की कुर्बत में चलना याद रखें। ये याद रखते हुए कि ईसा अल मसीह ने फरमाया है कि अपने अल्लाह ताला से अपने सारे दिल, सारी जान और सारी अक़ल से मोहब्बत रख और अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। हमें याद रखना चाहिए कि हमारे पास जो भी अच्छी चीज़ है वो अल्लाह ताला की तरफ से आई है। इसलिए बराए मेहरबानी जाने से पहले इस बक्स में हदिया को डालते जाएं। ये हदिया हमारी कौम के गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को दिया जाएगा। चलो भाइयों, अगले हफ्ते दोबारा मिलेंगे। आज रात जैसे हमने बात की कि जब हम तकलीफ़ों का सामना करते हैं तो एक दूसरे के लिए दुआ करना याद रखें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आमीन। वो खुदा का शुक्र अदा करते हैं उसकी तमाम बरकतों के लिए और उसके नक्शे कदम पर चलते हुए वो ईसा अल मसीह की कुर्बानी को याद रखते हुए ये रोटी एक साथ खाते हैं। आपने ऐसे तरीके को मिसाल के तौर पर देखा और अब आप भी अपने घरों में दूसरों के साथ रिफाकत और कलाम पाक का मुताला कर सकते हैं। आइए हम मुख्तसर तौर पर देखें कि हमने इस मरतबा इकट्ठा होने के दौरान क्या देखा।
पहले हमने देखा कि उन्होंने इंजील शरीफ में एक हवाला पढ़ा कि उस पर ध्यान करें। दोम, उन्होंने रूल कुद्दूस का इंतज़ार किया कि इस हवाले की रोशनी में खुदा की मर्ज़ी उन पर ज़ाहिर हो। फिर उन्होंने एक दूसरे से मशवरा किया कि उन्हें रूल कुद्दूस की तरफ से क्या मिला और उनको इस पर अमल करना किस कदर ज़रूरी है। और अब ये आप सब के लिए मौका है कि जिस शख्स ने आपको ये फ़िल्म दिखाई आप उससे मज़ीद बातचीत करें कि आप इस किस्म की रिफ़ाकत का तजुर्बा किस तरह कर सकते हैं जो अभी आपने देखी है। आप इसी किस्म की रिफ़ाकत अपने घरों और कौम के लोगों के साथ शुरू कर सकते हैं। अगर आप अपने इज्तिमा के लिए जानकारी हासिल करना पसंद करें तो इस फिल्म के आखिर में दिए गए पते पर राब्ता कायम कर सकते हैं। अल्लाह ताला इस बात का मुंतज़िर है कि ईसा अल मसीह की रिफ़ाकत में ज़्यादा गहरे तौर पर लोग उसकी पैरवी करें और वो ऐसे सरबराहों की तलाश में भी है जो पाकीज़गी में दूसरे ईमानदारों के लिए एक नमूना हो। ये रिफ़ाकत जो उन्होंने एक दूसरे के साथ रखी, ये पूरी दुनिया में फैली हुई उम्मा अल मसीह का एक छोटा सा हिस्सा है। रिफ़ाकत कायम करने और तश्कील देने के मुख्तलिफ़ तरीक़ों में ये तमाम जमातें एक कदर मुश्तरक के बाइस आपस में मुंसलिक हैं, यानी ईसा अल मसीह की पैरवी और बाहम इकट्ठा होने की खुशी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। नजर से था ओझल ये माना जहां में, नजर से था ओझल ये माना जहां में, रहे साथ अपनों के हर दम जहां में, रहे साथ अपनों के हर दम जहां में, वो फिर बाप के दाहिने बैठा है आकर, शिफायत नहीं है तो फिर और क्या है, शिफायत नहीं है तो फिर और क्या है, कलामे खुदा खुद मुजस्सम हुआ है, कलामे खुदा खुद मुजस्सम हुआ है, ये वहदत नहीं है तो